So get ready with your notes copies. On every page, write date, subject, name, roll number, section. In the last class, we had seen about the basic structure of a C++ program, and where I had discussed that whatever statements which start with hash are known as preprocessor directives. And between the preprocessor directive and the main function, what the area is known as the global declaration area, and the variables or functions or classes that you declare or define here are accessible throughout the program, as well as they can be accessed outside this. Ex- yes, what? Any question? चलिए. So in the last class we were discussing that between the preprocessor directive and main function, a global area exists, a global declaration and definition area where you can declare and define variables, you can define classes, you can define functions. All those declarations are available throughout the program to each and every function, and also those declarations and definitions are available outside the program also. So अगर ये प्रोग्राम का जो नेम है test.cpp है, तो अगर आपने किसी और फाइल इसी डायरेक्टरी के अंदर अगर एक और आपने cpp फाइल बनाया है, उसमें अगर हैश इंक्लूड test.cpp किया है, तो आप test.cpp के जितने भी ग्लोबल डिक्लेरेशंस उनको आप यूज कर सकते हैं. Then we had seen about the main function declaration, that this main function declaration you have already done in C. So the idea is exactly same. So the program execution starts with the main function, and below the main function there can be declarations and there can be definitions and declarations done, और वो भी आप main function में use कर सकते हैं. ठीक. So this was about the very basic structure of C++ program. So today we'll just discuss about the C++ compiler. How does it work? Once we have written a source code using a text editor, so what we need first is a text editor. Text editor में हम क्या करेंगे? We will write our source code. So the source code has to be written in a text editor in a plain text format, and that particular code that you have written should be saved with the extension .cpp. So जो टर्बो सी का कंपाइलर ऑलरेडी यूज करते हैं उनको मालूम है कि जो फाइल है .c करके सेव करते थे, तो यहाँ पे जो है फाइल्स विल बी सेव्ड एज .cpp. So source code is a simple file. It is a text file having the extension .cpp, and whatever we write, the programs that we write are known as the source code, and the file will be known as the source file. The compiler operates on a translation unit consisting of source file and all the header files referenced by hash include directive. So in the last class, I had already explained about hash include iostream.h, that's declaration statement that we have seen. So the idea is very simple, that when we use a particular file name in hash include, the code of the uh, header file or any file that we use in hash include gets included in our source code, source file. So ये पूरा का पूरा जो कोड है उसको ट्रांसलेशन यूनिट कहा जाता है, बिकॉज C++ का कंपाइलर है वो पूरे के पूरे कोड को एज ए सिंगल यूनिट ट्रीट करता है. So whatever code we have written, that will be treated as a single unit, and उसको ट्रांसलेशन यूनिट बोलते हैं. So translation unit consists of source file and all the header files that we use in hash include directive, because पूरा इकट्ठा करके एक सिंगल सोर्स कोड फाइल बनाया जाता है, और वो पूरा जो सोर्स कोड बनता है वो सिंगल ट्रांसलेशन यूनिट कहलाता है. So translation unit is nothing but the code which is present as a source code. If the compiler finds no errors in the translation unit, it generates an object file.
So the compiler will compile the entire code at one go, and if there are no errors, then it will generate the object file. It will convert the source code file into an intermediate code, which is known as object file. So object file क्या होता है? एक intermediate code होता है. तो compiler does not convert the program code directly into machine code. It converts it into an intermediate code, and that intermediate code is being saved as .obj or .o file. So .obj extension करके सेव किया जाता है. So हमारा जो source code file है, it has the extension .cpp, and the object file which is being generated is in the having the extension .o or obj. So obj जो फाइल बनता है, ऑब्जेक्ट फाइल जिसको बोलते हैं, इट इज एन इंटरमीडिएट कोड विच इज सिमिलर टू मशीन कोड. काफी सिमिलर होता है. कंपाइलर में ही एक असेंबलर का भी पार्ट होता है, वो उस कोड को कन्वर्ट कर देता है टू मशीन कोड, एक्चुअल मशीन कोड. So the compiler translate each translation unit and into a separate object file. So जितना भी translation units रहेंगे, that .cpp फाइल है, उसका एक ट्रांसलेशन यूनिट अलग से बनेगा. .h फाइल्स जो हैं उसके ट्रांसलेशन यूनिट्स अलग से बनेंगे. और लास्ट में जाके क्या होता है? लिंकिंग प्रोसेस होता है. So the compiler also has a linker that combines all the object files. So अगर सोच लीजिए मैंने a.cpp फाइल बनाया, तो a.obj करके एक ऑब्जेक्ट फाइल बनेगा. ठीक, उसमें जो भी अपन ने कुछ कोड हैश इंक्लूड किया था, सभी का .obj फाइल बनेगा, और सबका लिंकिंग होता है. जब लिंकिंग होता है, दैट इज परफॉर्म बाय द लिंकर. तो लिंकिंग इज नथिंग बट लिंकिंग ऑफ द फंक्शन कॉल टू देयर डेफिनेशंस. सो जहां जहां पे आपने फंक्शन कॉल्स किए हैं, वहां पे उसके डेफिनेशंस के साथ उसको कनेक्ट करने का काम को लिंकिंग प्रोसेस बोला जाता है, एंड दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द लिंकर. सो आफ्टर द लिंकिंग प्रोसेस इज कंप्लीट, an executable file can be created, and that executable file is actually run on the system. ये जितने भी स्टेप्स हम देख रहे हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रेफरेंस से देख रहे हैं. So here is the basic diagram of the entire compilation process which takes place. So initially we have the .cpp file which contains the source code. We write the C++ programs and save it as .cpp file. We provide it to the compiler. The compiler has a preprocessor. The preprocessor processes the preprocessor directives. That is, every code which is present above the main function, वो प्री-प्रोसेसिंग में आता है, एंड जो हैश से स्टार्ट हुए स्टेटमेंट्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करता है. प्री-प्रोसेसर परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशंस रिलेटेड टू द हैश statements which are starting with hash. Then it provides the semi-processed code to the compiler. The compiler has an assembler. The compiler converts it to the assembly code. Whichever code which is present, that is preprocessor से जो मिला हुआ कोड है प्लस जो मेन फंक्शन है वगैरह वगैरह, वो कंपाइलर उसको भी प्रोसेस करता है और ये पूरे को इकट्ठा करके असेंबली कोड बनाता है. असेंबली कोड बनाने के बाद it provides assembly code to the assembler. The assembler converts that particular assembly code into object code, इसको obj फाइल बोल रहे हैं. ठीक, तो असेंबली कोड अपना जो है एक इंटरमीडिएट कोड है. असेंबलर क्या करता है, उस इंटरमीडिएट कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल में. ऑब्जेक्ट फाइल combined with the libraries by the linker converts the entire thing into an exe file, executable file. So इस डायग्राम को आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए. सबसे ऊपर आएगा सोर्स कोड .cpp फाइल. That cpp file will be given to the preprocessor.
that will process all the preprocessor directives starting with hash. Semi processed code बनता है, that semi processed code is given to the compiler. The compiler compiles the entire code and converts it into assembly code. The assembly code is provided to the assembler. The assembler converts the assembly code into object code. ये मशीन कोड के आसपास का कोड रहता है, ऑलमोस्ट मशीन कोड रहता है ये. ऑब्जेक्ट कोड इज कंबाइंड विद द लाइब्रेरीज. लाइब्रेरी कोड हैश इंक्लूड जो अपन ने यूज किया .h, वो लाइब्रेरीज हैं. उनको और हमारे .cpp का जो obj फाइल बना था उन दोनों को कंपाइल किया जाता है, कंबाइन किया जाता है यूजिंग द लिंकर. After the linking process is complete, then an exe or executable file is generated. इस डायग्राम को थोड़ा याद रखिएगा, इसको नोट कर लेंगे. ठीक. सो दिस वाज द कंपाइलेशन प्रोसेस. एक बेसिक मैंने आपको बताया. सो लेट अस मूव ऑन टू द प्रोग्रामिंग पार्ट. तो वी विल स्टार्ट विथ C++ क्लासेस. तो C++ क्लासेस के लिए जो है विल स्टार्ट विथ द बेसिक डेफिनेशन. दिस डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, बट एक रिवीजन जैसा है. द क्लास कीवर्ड विल बी यूज्ड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द क्लास कीवर्ड विल बी यूज्ड. क्लास कीवर्ड को याद रखिएगा, स्मॉल केस में होता है, कैपिटल केस में यूज नहीं करना है. सो इन C++ प्रोग्रामिंग the reserved keywords are generally in small case. So class is a reserved keyword and it has to be mentioned in small case. So class is the keyword which is used to create classes. It is a user defined data type or derived data type. इसको user defined data type इसलिए बोल रहे हैं because using the class name we can declare objects. जैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं वैसे ही हम ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं. जैसे हमने एक क्लास बनाया, क्लास ए, कैपिटल ए नाम से अगर हमने कोई क्लास बनाया है तो कैपिटल ए स्पेस OB1 लिखने से क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट OB1 बन जाएगा, कॉमा OB2 लिखने से एक और ऑब्जेक्ट OB2 बन जाएगा. सो वी कैन क्रिएट n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द क्लास नेम. इसलिए हम उसको डेटा टाइप कहते हैं, बिकॉज डेटा टाइप का भी इसी टाइप का डिक्लेरेशन होता है. इंट a, b, c. तो a b c क्या हो गया, तीनों इंटीजर्स हो गए. वैसे ही कैपिटल ए स्पेस OB1, OB2, OB3. सो OB1, OB2 एंड OB3 बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए. सो इंट ABC अगर हम लिखते हैं a, b, c, सो a, b, c तीन वेरिएबल्स बनेंगे. तीनों के अंदर इंट के प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, इंटीजर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी. सिमिलरली कैपिटल ए लिख के अगर OB1, OB2, OB3 लिख रहे हैं, so objects OB1, OB2 and OB3 will acquire the properties of class A. That's why classes are known as data types. क्योंकि ये इनबिल्ट नहीं है. These data types are not inbuilt. इसका मतलब क्या है, कंपाइलर डिफाइंड नहीं है, मतलब कंपाइलर को पता नहीं है इनके बारे में. क्लास कीवर्ड के बारे में जरूर पता है लेकिन क्लास ए के बारे में पता नहीं, बिकॉज क्लास ए का डेफिनेशन हम लिखेंगे. वी विल डिफाइन क्लास ए. सो व्हाट वी विल डिफाइन द कंपाइलर डज नॉट नो. सो कैपिटल ए विच इज ए क्लास, उसका जो डेफिनेशन है वो कंपाइलर के पास तभी आता है जब हम उसको डिफाइन करते हैं. तो कंपाइलर को पहले से उसकी जानकारी नहीं होती है, इसीलिए उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. मतलब जब तक प्रोग्रामर डिफाइंड, इसको प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं. प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप कहिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहिए, या डिराइव्ड डेटा टाइप कहिए. इट इज जस्ट बिकॉज द कंपाइलर डज नॉट हैव एनी आइडिया बिफोर हैंड about the data type that we are going to create. So it is our own data type. That's why it can be called as user defined या programmer defined data type या derived data type. अब इसको derived data type क्यों बोलते हैं? Derived data type इसलिए बोलते हैं क्योंकि when we create a class, we have to use somehow or the other the basic data types.
अभी आप एग्जांपल्स हम देखेंगे कि कभी भी आप क्लास को जब बनाएंगे तो उसमें जो डेटा मेंबर्स आप बनाएंगे, वो डेटा मेंबर्स का जो डिक्लेरेशन होगा कहीं ना कहीं आपको बेसिक डेटा टाइप्स का यूज करना पड़ेगा. So as we are using basic data types to build our own data type, that is class name, so we are actually creating a derived data type. So basic data type से derive करके हम अपना own data type बना रहे हैं. So that is why it is known as also derived data type. So the classes that we create are known as user defined data type or programmer defined data type or derived data type. होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर है. वाई अभी एक्चुअली क्या होता है, मैं इसलिए सब स्ट्रेस कर रहा हूँ बिकॉज ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है. सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या डिराइव्ड डेटा टाइप या प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप का क्या मतलब है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाइलर डिफाइंड या बेसिक डेटा टाइप्स. सो ये डिफरेंस आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि बेसिक डेटा टाइप्स कंपाइलर के पास पहले से प्री डिफाइंड होते हैं और उसकी जानकारी कंपाइलर को पहले से ही रहती है, and it is already defined in the language. The compiler already knows about those data types. But when we talk about derived data types, it is not predefined with the compiler. We as programmers, as users, create those data types. That's why those data types are known as derived data types, या user defined data types या programmer defined data types. इसलिए क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिसके आते यूडीटी भी बोलते हैं और डिराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं. Classes implement data hiding, encapsulation and abstraction. We had already seen about all these topics. एक brief में मैंने आपको बताया था कि data hiding क्या होता है, encapsulation क्या होता है, abstraction क्या होता है. ये सब interrelated topics हैं. So जब हम class बना रहे हैं उसमें data hiding भी आ जाएगा, encapsulation भी implement हो जाएगा, abstraction भी implement हो जाएगा. Members of a class are known as डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस. ये दो टाइप के मेंबर्स हो सकते हैं क्लास के अंदर में, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. डेटा मेंबर्स में बेसिक डेटा टाइप यूज करके जो डिक्लेरेशन हम देते हैं वो डेटा मेंबर्स कहलाएगा, या तो फिर हम दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को भी एज ए डेटा मेंबर बना सकते हैं. वी कैन डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस एज डेटा मेंबर्स. उनको आप ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स भी बोल सकते हैं, उनको ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स भी बोल सकते हैं, सिंपल डेटा मेंबर्स बोलेंगे तो भी चलेगा. डेटा मेंबर का मतलब ही ये होता है कि समथिंग विच कैन होल्ड वैल्यूज. सो व्हाट कैन होल्ड वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कैन होल्ड वैल्यूज. तो जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स हम डिक्लेयर करते हैं इनसाइड ए क्लास आर नोन एज डेटा मेंबर्स. और मेंबर फंक्शंस क्या होंगे? मेंबर फंक्शंस अपन ने क्लास के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि कोई बिहेवियर होता है, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी का एक बिहेवियर पार्ट भी होता है, उसका एट्रीब्यूट पार्ट होता है और बिहेवियर पार्ट होता है. So behavior part है is the action part, what activity that particular object can perform. So वो activity part को हम जो है member functions के through represent करते हैं या simple functions के through represent करते हैं. So any function which is declared inside a class is known as a member function of the class. So functions use करके हम behavior को set करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या behavior हो सकता है एक particular class के अंदर. So जो भी हम data declarations कर रहे हैं वो data members कहलाएगा, जो भी फंक्शन डिक्लेरेशंस कर रहे हैं वो फंक्शन मेंबर्स कहलाएगा. So there are two classification या category of members in a class, data members and member functions. ठीक. So generally डेटा में जो member functions होते हैं they are meant to, they are specially made to modify the data members or to view the data members. So class के अंदर में जो member functions हैं they should only have the access to the data. क्लास के अंदर में जो डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शंस को ही यूज करना है. आउटसाइड कोई भी फंक्शन जो है वो डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं करना चाहिए. सो डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए मेंबर फंक्शंस बनाए जाते हैं. मेंबर फंक्शंस आर मेंट टू व्यू एंड मॉडिफाई द डेटा मेंबर्स. सो एनी function outside the class should not have any access to the members inside the class. So using class we can create our own data type. जैसे अभी मैंने
एग्जाम्पल बताया था, विल सी डिटेल एग्जाम्पल लेटर ऑन। अभी कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं हम लोग। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, नोट करके रख लेना है। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द यूएमएल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासेस। अभी तक जो भी डिस्कशन चल रहा है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। आप यू कैन इंटरप्ट इन बिटवीन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। सो नेक्स्ट इज द यूएमएल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासेस। यूएमएल रिप्रेजेंटेशन क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज is the design language used for software development. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो डिजाइन्स हम क्रिएट करते हैं, उन डिजाइन्स को जब हम क्रिएट करते हैं उनका एक रूल फॉलो होता है। दैट रूल्स आर फॉलोड, दैट कम अंडर यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज रूल्स। सो उसमें से एक इंपॉर्टेंट रूल है हाउ टू रिप्रेजेंट क्लासेस। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट क्लासेस, जनरल यूएमएल जो है वो डायग्राम्स का एक सेट है एक्चुअली। बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं उसमें, यूज केस डायग्राम्स होते हैं, क्लास डायग्राम होता है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स होते हैं, सीक्वेंस डायग्राम्स होते हैं, एक्टिविटी डायग्राम्स होते हैं, डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स होते हैं, कंपोनेंट डायग्राम्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के डायग्राम्स होते हैं यूएमएल में। उसमें से जो बेसिक डायग्राम है, क्लास बोलते हैं जिसको, क्लास डायग्राम। सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एनी क्लास in design format, software design format, we use the UML representation for creating a class. And whenever we create a class, we have some data members and member functions, and we have a unique class name. So ये देखिएगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए पूरा के पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स को ऑब्जर्व करेंगे, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इसमें जो है देर आर 3 रोज। द फर्स्ट रो रिप्रेजेंट्स द क्लास नेम। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लास नेम, इसको हाईलाइट किया जाता है एक्चुअली, क्लास नेम। Below the class name, the second row represents the data member declarations, and the third row represents the member function declarations. अब ये जो ऑब्जर्व करते हैं, देखिएगा इसको बहुत क्लीनली ऑब्जर्व करिएगा। ऑल दीज रिप्रेजेंटेशंस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशंस। So UML diagrams are programming language independent representation of the software design. So यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। So if we create a class, then we can represent it inside a rectangular box whose top row is the class name, whose top row is the class name, second row is the data member declarations, third row is the function member declarations. ठीक? So देखिएगा, अब इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि डेटा मेंबर डिक्लेरेशंस को ऑब्जर्व करिएगा। यहाँ पे एक प्लस ऑपरेटर यूज किया गया है, प्लस सिंबल। एक्चुअली ऑपरेटर नहीं है, ये प्लस सिंबल है, सिंबल जैसे बताएंगे इसको हम लोग। तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स पब्लिक डिक्लेरेशंस। So we have 3 kinds of access types: public, protected, and private. We'll see them in details later. So UML diagrams में जब हम प्लस सिंबल को यूज करते हैं, the plus symbol represents public declaration. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, नीचे में भी देखिएगा, यहाँ पे फंक्शन में भी प्लस यहाँ पे लिखा है, ये पब्लिक फंक्शन हो गया। यहाँ पे जो प्लस लिखा है वो पब्लिक डेटा मेंबर हो गया। प्लस लिख के डेटा मेंबर का नाम, कोलोन लगा के डेटा टाइप। सो अगर सोच लीजिए हमने एक डिक्लेरेशन दिया है क्लास के अंदर इंट ए, और वो पब्लिक डिक्लेरेशन है, तो सी प्लस प्लस में हम कैसे लिखेंगे? पब्लिक कोलोन स्पेस इंट स्पेस ए सेमीकोलन। सो इंट ए जो है दैट इज ए डेटा मेंबर, वो पब्लिक के अंडर में डिक्लेयर्ड है। तो जब हम यूएमएल नोटेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस ए कोलोन इंट।
plus a colon int. So that will suggest that int a जो है, जो a है इंटीजर टाइप का है, वो पब्लिक डिक्लेरेशन में डेटा मेंबर है. Similarly, hash is used for declaring protected data members. Hash का मतलब होगा प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड का एक क्वालिटी होता है, हम लोग देखेंगे कि वो इनहेरिटेंस में मिलता है लेकिन आउटसाइड इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा. उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है विद इन द क्लास होती है एंड विद इन इनहेरिटेंस होता है, आउटसाइड द क्लास अवेलेबिलिटी नहीं होती उसकी. सो विल सी देम लेटर ऑन. फिलहाल के लिए याद रखना है, हैश इज यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग प्रोटेक्टेड मेंबर्स. प्रोटेक्टेड मेंबर्स का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? डेटा मेंबर्स को, डेटा मेंबर का नाम कोलन डेटा टाइप. तो सोच लीजिए अपन ने एक डिक्लेरेशन दिया है प्रोटेक्टेड कोलन स्पेस. प्रोटेक्टेड डिक्लेरेशन दे रहे हैं, प्रोटेक्टेड कोलन स्पेस लिखेंगे, इंट बी सेमीकोलन. प्रोटेक्टेड कोलन स्पेस इंट बी सेमीकोलन. सो इंट बी जो है वो प्रोटेक्टेड एक्सेस मोड में है. तो यूएमएल में कैसे लिखेंगे? हैश बी कोलन इंट. सिमिलरली माइनस जो सिंबल है, माइनस सिंबल यूज करते हैं फॉर प्राइवेट डिक्लेरेशंस. So anything which is declared as private will be denoted as, will be starting with minus symbol. तो सब्ट्रैक्शन के सिंबल यूज कर रहे हैं. सेम है, माइनस सिंबल यूज करेंगे, डेटा मेंबर का नाम लिखेंगे, कोलन लगाएंगे और डेटा टाइप लिखेंगे. तो ये डेटा मेंबर का डेटा टाइप क्या है वो भी स्पेसिफाई हो रहा है यहाँ पे, और वो किस एक्सेस मोड में है वो स्पेसिफाई हो रहा है. सो माइनस रिप्रेजेंट्स प्राइवेट मेंबर डिक्लेरेशन. ठीक. सो एग्जाम्पल जैसे प्राइवेट कोलन स्पेस. अब प्राइवेट कोलन लिखा मतलब प्राइवेट डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं क्लास के अंदर में. प्राइवेट कोलन स्पेस इंट सी. सो इंट सी क्या हुआ? इट इज ए प्राइवेट डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर. तो उसको कैसे लिखेंगे यूएमएल में? माइनस सी कोलन इंट, माइनस सी कोलन इंट. So ये रिप्रेजेंट करेगा that C is integer type of data member which is private, declared as private inside the class. एक और इसमें कॉमन रिप्रेजेंटेशन होता है, अंडरलाइन किया जाता है. देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया है पूरे डिक्लेरेशन को. When we are underlining the declaration, that particular declaration becomes static. Static specifier उसमें लग जाता है. So you might have studied about static declarations in C. Same, एकदम exactly same idea यहाँ पे लगेगा, लेकिन थोड़ा सा modified रहता है because it is related to classes. So its effect changes a little bit, but the idea is completely same. Static declarations के लिए हम लोग underline use करेंगे. So ये कैसे हो गया? जैसे यहाँ पे लिखा है plus, तो इसमें मतलब ये public static हो गया. अगर यहाँ पे माइनस लिखा रहता तो क्या रहता? प्राइवेट स्टैटिक हो जाता. अगर यहाँ पे हैश लिखा रहता, हैश सिंबल रहता, तो क्या हो जाता? प्रोटेक्टेड स्टैटिक डेटा मेंबर बन जाता. ठीक. सो एनी डेटा मेंबर दैट यू पुट अंडरलाइन बिकम्स अ स्टैटिक डेटा मेंबर. सो इसका जब आप कोड लिखेंगे तो स्टैटिक डिक्लेरेशन के साथ इसका कोड लिखेंगे. अभी एग्जांपल बता रहा हूं. जैसे यहाँ पे प्लस लिखा है, तो सोच लीजिए मैंने डिक्लेरेशन दिया पब्लिक कोलन, पब्लिक डिक्लेरेशन हो गया पब्लिक कोलन स्पेस स्टैटिक इंट एस सेमीकोलन. पब्लिक कोलन स्पेस स्टैटिक इंट एस सेमीकोलन. तो स्टैटिक इंट एस बना दिया, मतलब एस जो है हमारा स्टैटिक मेंबर है और वो पब्लिक डिक्लेयर्ड है. तो उसको यूएमएल में कैसे लिखेंगे? प्लस स्पेस एस कोलन इंट अंडरलाइन, प्लस स्पेस एस कोलन इंट कंप्लीटली अंडरलाइन. पूरा स्टेटमेंट अंडरलाइन रहेगा. तो दैट विल रिप्रेजेंट अ पब्लिक स्टैटिक मेंबर. ऐसे आप प्राइवेट स्टैटिक मेंबर भी बना सकते हैं अंडरलाइन लगा के, प्रोटेक्टेड स्टैटिक मेंबर भी अंडरलाइन लगा के बना सकते हैं. तो ये जो अपन ने यहाँ पे हैश प्लस और माइनस का देखा, ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम है
पब्लिक मेंबर्स में मेंबर फंक्शंस में। अब एक एक करके इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि पहला, जिस भी डिक्लेरेशन के सामने आप प्लस यूज करेंगे दैट बिकम्स पब्लिक, क्योंकि हम लोग थर्ड रो के अंदर में है इनसाइड द बॉक्स। सो वी आर एक्चुअली इन द फंक्शन डिक्लेरेशन, दैट इज मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन एरिया में है। तो यहाँ मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे हो रहा है, प्लस अगर यूज करें तो पब्लिक मेंबर फंक्शन हो जाएगा। उस फंक्शन का नाम लिखना है, ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट में इनपुट टाइप्स देने हैं। इनपुट टाइप्स क्या क्या है, डेटा टाइप्स मेंशन करना है, वेरिएबल नेम्स कहीं भी मेंशन नहीं करना, यहाँ पे जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, जरूरत नहीं है। इनपुट टाइप्स मतलब हो जाएगा इनपुट आर्गुमेंट्स। सो यू हैव टू डिक्लेयर, you have to mention the input arguments data types here. So say for example we have created a function add करके अपन एक फंक्शन बनाया मेंबर फंक्शन, उसका रिटर्न टाइप इंट है, इनपुट आर्गुमेंट में दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है इंट कॉमा इंट, और वो पब्लिक मेंबर फंक्शन है। ठीक, सो हमको अगर बनाना है एक ऐड फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज ऐड, add, रिटर्न टाइप इज इंट, इनपुट आर्गुमेंट्स में दो इंटीजर वैल्यूज हैं इंट कॉमा इंट, और वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद लिखेंगे ऐड, ब्रैकेट में लिखेंगे इंट कॉमा इंट, ये इनपुट डेटा टाइप्स हो गए, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे इंट, बिकॉज रिटर्न टाइप इज ऑल्सो इंट। सो रिटर्न डेटा टाइप यहां लिखेंगे कोलन के बाद। So this is how public member functions are declared or shown in UML notation. Same treatment for protected members. Hash use करेंगे protected members के लिए. So hash protected member function name bracket में input arguments types, data types of the input arguments, colon return type of the function. Same for प्राइवेट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस सिंबल यूज करेंगे, प्राइवेट फंक्शन नेम ब्रैकेट इनपुट डेटा टाइप लिस्ट कॉमा लगा के ब्रैकेट कंप्लीट कोलन रिटर्न डेटा टाइप। और अगर अंडरलाइन कर देते हैं, द सेम दैट वी हैव डन इन डेटा मेंबर, अगर अंडरलाइन करते हैं उसका सेम मीनिंग होता है, स्टैटिक हो जाएगा। So any function member function which is static should be represented using underline. So यहाँ पे जैसे एग्जांपल, जैसे अभी यहाँ पे लिखा है प्लस लिखा है, तो प्लस लिखा है मतलब पब्लिक डिक्लेरेशन हो रहा है, मेंबर फंक्शन है, वो अंडरलाइन किया है मतलब वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इनपुट डेटा टाइप्स कोलन रिटर्न टाइप लिखा है। सो इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, पब्लिक कोलन, प्लस के लिए हम लिखेंगे पब्लिक कोलन स्पेस स्टैटिक, से एग्जांपल बता रहा हूं, स्टैटिक इंट ऐड ब्रैकेट में इंटीजर कॉमा इंट अगर हमने लिखा है, फिर से बता रहा हूं, पब्लिक कोलन स्टैटिक इंट ऐड ब्रैकेट के अंदर इंट कॉमा इंट। सो ये डिक्लेरेशन अगर आपने लिखा है पब्लिक में, स्टैटिक फंक्शन बनाया ऐड को, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस ऐड ब्रैकेट में इंट कॉमा इंट कोलन इंट। ठीक, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट क्लासेस इन यूएमएल फॉर्मेट। ये डिजाइन फॉर्मेट है, ठीक, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या अभी? Okay, any questions you have in your mind, please ask me immediately, okay? Okay, so we'll see the basic syntax for creating a class. Class is the keyword. Remember, class is the keyword that we'll be using. Space लगाना है बीच में, class का name use करना है, class name should follow the identifier naming conventions. आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना है यहाँ पे, मतलब जो आइडेंटिफायर्स आप बनाते हैं,
आइडेंटिफायर्स जो होते हैं जैसे वेरिएबल नेम्स, कांस्टेंट नेम्स, फंक्शन नेम्स, उनको आइडेंटिफायर्स बोला जाता है. सो एनी नेम दैट यू राइट फॉर क्रिएटिंग एन आइडेंटिफायर, चाहे वो वेरिएबल नेम हो, कांस्टेंट नेम हो, फंक्शन नेम हो, उनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं. सो आइडेंटिफायर के नेमिंग कन्वेंशन जो है उसको फॉलो करना है. स्टार्टिंग लेटर जो है अल्फाबेट होना चाहिए. देयर कैन नॉट बी एनी स्पेस. अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, हाइफन सिंबल यूज नहीं कर पाएंगे. न्यूमेरिक वैल्यूज स्टार्ट में यूज नहीं कर पाएंगे, वगैरह वगैरह. जो आपने सी में देखा था एग्जैक्टली वही नेमिंग कन्वेंशन है. स्मॉल केस अपर केस में डिफरेंस होगा. ठीक, दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली. सो क्लास नेम शुड फॉलो द नेमिंग कन्वेंशन. सो क्लास कीवर्ड स्पेस क्लास नेम, उसके नीचे करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे. सो दिस इज द बॉडी ऑफ द क्लास. करली ब्रैकेट ओपन क्लोज represents the boundary or the body or the definition area of the class. So inside this particular area, whatever we define or declare becomes the definition of the class. जैसे functions में होता था exactly वही है. curly bracket open close करते थे, उसके अंदर जो भी लिखेंगे आप वो उस function का body हो जाएगा या function का code बन जाता है. Exactly same होता है यहाँ पे भी, that whatever we write inside opening curly brackets and closing curly brackets becomes the definition of the class. इनसाइड द डेफिनेशन ऑफ द क्लास. अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जब कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे सेमीकोलन लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकोलन लगाना जरूरी है. सो व्हेन वी क्रिएट ए क्लास वी हैव टू स्पेसिफाई इनसाइड द क्लास द एक्सेस स्पेसिफायर. जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, पब्लिक कोलन, प्राइवेट कोलन, प्रोटेक्टेड कोलन लगाते हैं, वो सब एक्सेस स्पेसिफायर्स में आएंगे. और जिस एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे डिक्लेरेशन आप देंगे, वो डेटा मेंबर्स का डिक्लेरेशन हो या फंक्शन मेंबर्स का डिक्लेरेशन हो, वो सभी चीजें जो है इस एक्सेस मोड स्पेसिफायर के नीचे आएंगे, तो वो एक्सेस मोड सब पे अप्लाई हो जाएगा. सो यहाँ पे एक्सेस मोड सोच लीजिए आपने लिखा प्राइवेट, प्राइवेट कोलन लिखा है. सो प्राइवेट कोलन लिखने के बाद नीचे में जितना भी डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं, चाहे वो डेटा मेंबर्स का हो या मेंबर फंक्शंस का हो, सभी मेंबर्स जो है वो प्राइवेट एक्सेस मोड के अंडर में आ जाएंगे. अगर एक्सेस मोड चेंज करना है तो फिर से आप एक्सेस मोड लिखिए, कोलन लगाइए, फिर उसके नीचे डिक्लेरेशंस देना शुरू कीजिए. सो एक्सेस मोड कोलन लगा के जो भी लिखेंगे उसके नीचे जितना भी डिक्लेरेशंस आएगा वो पर्टिकुलर एक्सेस मोड उन सब पे अप्लाई हो जाएगा, जब तक दूसरा एक्सेस मोड स्पेसिफायर आप नहीं देते हैं. ठीक, स्विच केस जैसा होता है ना, उस टाइप का है. जैसे केस 1 चल रहा है, जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक जो है वो केस 1 ही समझ के चलता रहता है. ठीक है, भले ही आपने केस 2 केस 3 लिखा हो. ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक्सेस मोड स्पेसिफायर देना है. जैसे एक्सेस मोड स्पेसिफायर देंगे वो वाला एक्सेस मोड स्पेसिफायर चलने लगेगा, अप्लाई होने लगेगा, जब तक दूसरा एक्सेस मोड स्पेसिफायर नहीं देते हैं. ठीक, सो एक्सेस मोड स्पेसिफायर देना है, कोलन लगाना है, कोलन इंपॉर्टेंट है एक्सेस मोड स्पेसिफायर के साथ. उसके नीचे जो भी डिक्लेरेशंस देंगे, ऑल दोज डिक्लेरेशंस विल बी कमिंग अंडर द स्पेसिफाइड एक्सेस स्पेसिफायर. ठीक, सो अब इसमें एक और दो प्रॉपर्टीज, एक और प्रॉपर्टी है क्लास का, दैट मेंबर फंक्शंस कैन बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास. You can define the member functions inside the class as well as outside the class. So अगर inside the class define कर रहे हैं तो normally जैसे आप करते हैं function definition declaration वो ऐसे ही रहेगा. लेकिन outside the class अगर करना है तो function declaration class के अंदर करेंगे, function declaration class के अंदर करेंगे और function definition class के बाहर करना है. अगर करना है तो ऑप्शन है हमारे पास. तो जब हम क्लास के बाहर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना है. स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज डबल कोलन. डबल कोलन सिंबल जो है वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहलाता है. सो व्हाई डू वी नीड दिस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? व्हेन वी आर trying to define the member function outside the class.
ठीक, तो वी नीड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, द सिंबल इज डबल कोलन। तो उसको कैसे लिखना है, सिंटैक्स ऑब्जर्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये बार बार बताने लायक चीज नहीं है कि जब कोडिंग शुरू करेंगे तो आपको ये चीज तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, सिंटैक्स के हिसाब से हम सही लिख रहे हैं कि नहीं। सो राइट डाउन द सिंटैक्स, रिमेंबर द सिंटैक्स। जब हम अब हम क्या कर रहे हैं कि क्लास के अंदर में हमने डिक्लेयर किया है फंक्शन को, क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, तो दैट वी फॉर दैट वी नीड द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। एंड वो कैसे किया जाएगा, देखिए ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले लिखना है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप लिखना है, रिटर्न टाइप किसका है, फंक्शन का रिटर्न टाइप, दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। फिर स्पेस लगाना है, उसके बाद लिखना है क्लास का नेम, जिस क्लास के अंदर हमारा फंक्शन डिक्लेयर्ड है उस क्लास का नेम लिखना है। क्लास नेम लिखने के बाद स्पेस आप चाहे तो लगा सकते हैं, कोलन डबल कोलन ऑपरेटर लगाएंगे, डबल कोलन सिंबल को लगाएंगे, इट इज नोन एज द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर सिंबल। डबल कोलन सिंबल लगाएंगे, उसके बाद फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे, फंक्शन नेम इज द नेम ऑफ द फंक्शन दैट यू हैव डिक्लेयर्ड इनसाइड दिस क्लास, तो क्लास नेम आपने यहाँ पे मेंशन किया है उसके अंदर, ब्रैकेट्स लगाएंगे और इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट लिखेंगे। ठीक, इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट, फॉर्मल लिस्ट जो आर्गुमेंट्स का लिस्ट होता है उसको यहाँ पे लिखेंगे विथ वेरिएबल नेम्स। इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट लिखेंगे, कॉमा लगा लगा के वेरिएबल नेम्स लिखेंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, इनसाइड विच वी हैव टू पुट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ द मेंबर फंक्शन। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, उसके अंदर जो भी लिखेंगे दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ द मेंबर फंक्शन। ठीक, सिंटैक्स को फिर से एक बार बता दूं, रिटर्न टाइप लिखेंगे, दिस इज रिटर्न टाइप ऑफ द मेंबर फंक्शन, स्पेस लगाना है, क्लास नेम लिखेंगे, द नेम इन विच द क्लास इन विच द फंक्शन इज रिसाइडिंग और डिक्लेयर्ड, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, द नेम ऑफ द फंक्शन यू हैव टू मेंशन हियर, देन इनसाइड द ब्रैकेट्स, simple brackets, you have to put the list of arguments, input list arguments along with the data types and variable names. उसके नीचे curly bracket open close करके inside the curly brackets you have to write the definition of the function. This is how you can define a function outside the class. This is how you define the function outside the class. ठीक है, so you can define the member functions inside the class एज वेल एज आउटसाइड द क्लास, दोनों चीजें आपको एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स याद रखिएगा, रिमेंबर दिस सिंटैक्स, वट एवर आई एम गिविंग यू इन द पॉइंट्स प्लीज रिमेंबर देम, नोट देम डाउन। ठीक, नेक्स्ट जो है एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कंक्लूड करने से पहले। एक्सेस स्पेसिफायर्स जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड करके तीन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस मोड स्पेसिफायर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस मोड स्पेसिफायर्स। हाँ बेटा बोलो। सर मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करने पे सर का मतलब सिंटैक्स को और मतलब क्या उसके लिए मेंबर फंक्शन मतलब ही डिक्लेरेशन शुड बी इनसाइड द क्लास। ठीक है, अगर मैं मेंबर फंक्शन बना रहा हूं तो क्लास के अंदर मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी वो जाके क्लास का मेंबर फंक्शन बनेगा। अगर हम किसी भी फंक्शन को क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो वो नॉन मेंबर फंक्शन बनता है, नॉर्मल फंक्शन बन जाता है, इट इज ए नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। क्योंकि फंक्शन जो क्लास का बाउंड्री है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया हुआ जो बाउंड्री होता है, उसके अंदर अगर हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो वो क्लास के अंदर को बिलोंग करता है, क्लास को बिलोंग करेगा, मेंबर कहलाएगा। क्लास के बाहर अगर डिक्लेयर करते हैं, इफ वी डिक्लेयर एनीथिंग आउटसाइड द क्लास, that becomes a non member, it is not the member of the class। ठीक है, वो ग्लोबल जैसे बन जाएगा। तो सर वो जो वो भाई क्लास रखा हुआ है या प्राइवेट या पब्लिक के जो
आपकी आवाज कट रही है, प्लीज थोड़ा रिपीट करेंगे क्या? सर जो फंक्शन बनेगा आउटसाइड द क्लास वो वही स्पेसिफाई रखेगा ना जो क्लास का ओरिजिनल मतलब था पहले, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जो भी। हाँ हाँ हाँ, एक्सेस स्पेसिफायर। ओके हाँ सर। हाँ, जो जो एक्सेस स्पेसिफायर हमने यूज किया है वही अप्लाई होगा। ठीक है, जिस एक्सेस स्पेसिफायर कोलन के नीचे में वो लिखा हुआ है ना, मेंबर फंक्शन या मेंबर डेटा, उस पे वो अप्लाई हो जाता है। ये एक्सेस मोड उसी पे अप्लाई हो जाएगा जब तक दूसरा एक्सेस मोड नहीं देते हैं। ठीक है, ओके सर। have three types of access specifiers: public, private and protected. पब्लिक एक्सेस मोड जब हम देते हैं, बाय डिफॉल्ट एक चीज तो याद रखना है, बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी एक्सेस मोड नहीं देते हैं तो वो क्लास के अंदर में प्राइवेट डिक्लेयर हो जाता है अपने आप, वो डिफॉल्ट है। सो द डिफॉल्ट एक्सेस मोड inside a class is private. The default access mode inside structures is public. ठीक है, इसमें फर्क है दोनों में, स्ट्रक्चर्स और क्लासेस में, दोनों में ये मेजर फर्क है। और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये एक मेजर फर्क है कि स्ट्रक्चर्स के अंदर जो भी डिक्लेरेशंस होते हैं बाय डिफॉल्ट दे आर पब्लिक। क्लास के अंदर जो भी डिक्लेरेशंस हम करते हैं जिसमें हम लोग ने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सेस मोड, वो होता है प्राइवेट। So inside class, if we do not specify any access mode, then by default the declaration becomes private. चाहे वो member data हो या member function हो, वो private बन जाएगा। Private members do not have access outside the class and nor they get inherited. Private members class के बाहर accessible बिल्कुल भी नहीं होते हैं और साथ साथ वो inherit भी नहीं होते हैं। We'll see about inheritance later. पब्लिक में जो भी डिक्लेरेशंस होते हैं दे आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास एज वेल एज दे गेट इनहेरिटेड। प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास बट गेट इनहेरिटेड। ठीक, तो तीनों में बहुत बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हैं, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। प्राइवेट क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, इनहेरिट भी नहीं होगा। प्रोटेक्टेड क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा लेकिन इनहेरिट हो जाएगा। पब्लिक क्लास के बाहर एक्सेस होगा, इनहेरिट भी हो जाएगा। तो सबसे जो बोलना चाहिए, जो सबसे अनसेफ होता है वो होता है पब्लिक। उसके ऊपर आता है थोड़ा सा सेफ होता है वो प्रोटेक्टेड, और हाईली जो सेफेस्ट होता है वो होता है प्राइवेट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक जो है वो अनप्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड जो है वो सेमी प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट जो है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम आउटसाइड एक्सेस। सो जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा हाइडिंग, उसको हम अचीव करते हैं यूजिंग प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। दैट्स व्हाई आई हैड पुट दिस पॉइंट डेटा हाइडिंग में, that in order to achieve data hiding we use private and protected access mode specifiers. ठीक, ये सभी पॉइंट्स को आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा आप मुझे रिमाइंड करते जाएं जिस जिस पॉइंट पे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ईच एंड एवरी पॉइंट हैज एन एग्जांपल हियर, विच एवर पॉइंट आई एम डिस्कसिंग हियर हैज एन एग्जांपल। ठीक है, सो प्लीज हेल्प मी टू रिमेंबर कि आपको मेरे को कौन सा पॉइंट को एक्सप्लेन करना है यूजिंग एन एग्जांपल। आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल्स, बट मे बी कहीं अगर कुछ मिस हो जाए तो मुझे प्लीज रिमाइंड करिएगा, क्योंकि एक एक लाइन जो मैं यहाँ कह रहा हूँ हर एक लाइन का एक एग्जाम्पल है। वी कैन सी द एग्जाम्पल इन एक्चुअल कोड। ठीक, सो let me discuss what you have done today. So starting with the C++ compiler, we had seen that whatever code we write is the source code in a text format. It has to be compiled. As soon as we compile it, it forms. It is converted into an intermediate code and then assembly code. Then an object file is created. That object file is linked, and then finally executable file is created. This is the idea. This is the diagram. This diagram you should remember.
source code, preprocessor, compiler, assembler, and linker, and the flow of control which is taking place, the flow of data which takes place here. Then we have seen about classes, basic idea of classes, class keyword use करना है, members के बारे में मैंने आपको बताया, data members and member functions, ठीक. तो member functions are mainly, intention क्या होता है member functions का, to view or modify the data members. उसके बाद we have seen about UML representation of a class. UML is unified modeling language, and this is a standard notation for creating software designs. So we had seen, I had told you about, there are various kinds of diagrams which are actually, UML is nothing but a set of diagrams. So there are many types of diagrams in UML, use case, class, component diagram, activity diagram, state transition diagrams, entity relationship diagrams भी आते हैं. ऐसे बहुत सारे diagrams होते हैं that help us to identify the entire software design. एंड उनमें से एक क्लास डायग्राम अपन ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था. बहुत ही बेसिक लेवल का मैं क्लास डायग्राम आपको बताया हूँ. इसमें भी और बहुत सी चीजें होती हैं, बाद में हम देखेंगे थोड़ा बहुत. जब आप एक्चुअली प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कब काम करेंगे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, सो यू विल गेट अ व्यू हाउ दीज आर यूज्ड. सो फॉर जस्ट फॉर ए बेसिक नॉलेज आई हैड एक्सप्लेन्ड यू. प्लस जो है वो पब्लिक के लिए यूज होगा, हैश प्रोटेक्टेड के लिए, माइनस प्राइवेट के लिए, अंडरलाइन यूज करने से वो स्टैटिक बन जाता है. सो क्लास नेम, डेटा मेंबर डिक्लेरेशन एंड मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशंस जो हैं वो हम यूएमएल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं, करना चाहिए. Then we had seen about the basic syntax of the class, how the class looks like. एक basic syntax बताया है. How we can define member functions outside the class. तो scope resolution operator के बारे में मैंने आपको एक brief में बताया है. उसके बाद lastly we had discussed very briefly about the access mode, access specifiers या access mode specifiers. ठीक है, इनको हम डिस्कस किए हैं. ठीक. So hopefully the points are clear. Any doubts related to today's topic, please ask.